Good morning to all of you on the channel named Aradhana's tutorial classes. And as I told to all of you that I will come with the topic conveyors in my next video, so I am here with the same. And one more thing I want to say that if you like my video and you understand something, then please like my video, share it, and subscribe my channel named Aradhana's tutorial classes. So this content you will find in my video. Conveyors, classification of conveying equipment, belt conveyor, working principle of belt conveyor, applications, types, limitations of belt conveyor, then screw conveyor, its working principle and applications, and then chain conveyor and its working principle and applications. Forward to the main topic, and that is conveyor. So what are conveyors? So as the name suggests, जैसा कि नाम से पता लगता है that the work of conveyor is to convey something from one place to another. convey करना मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. So conveyor systems are mechanical devices that transport material with minimal effort. conveyor system वो mechanical devices हैं जो किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है विथ मिनिमल एफर्ट बिकॉज देयर इज नो मैनुअल एफर्ट. ओके, सो देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वेयर सिस्टम्स. बहुत सारे अलग अलग तरह के कन्वेयर सिस्टम हैं. जनरली जो कन्वेयर सिस्टम होते हैं उनमें एक फ्रेम होता है, जिन फ्रेम पे या तो आपके रोलर होंगे या व्हील्स होंगे या फिर बेल्ट होगी, जिसके ऊपर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे. आप ऊपर फिगर दे रखा है, वहाँ देख सकते हैं बेल्ट कन्वेयर है एंड रोलर कन्वेयर है यहाँ पे. तो जो कन्वेयर्स हैं वो दे मे बी पावर्ड बाय अ मोटर, बाय ग्रेविटी और मैनुअली का कोई यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, बिकॉज मैनुअली हुआ तो कन्वेयर सिस्टम का मतलब भी क्या हुआ. देन these material handling systems, of course conveyors are material handling system because material is transporting from one place to another. ये material handling system इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए इन्हें material handling systems भी कहा जाता है. So these material handling systems come in many different varieties to suit the different products or materials that need to be transported. Means depending on the product or material, they are sticky or they are bulk in proportion. So depending on that kind, different varieties of conveyors are there to suit that type of material. Classification of conveying equipment. So below there are given the different type of conveyor, and the main types of conveyor are belt conveyor, screw conveyor and chain conveyor according to your syllabus, but I will explain each and every conveyor here, and I will explain belt conveyor, screw conveyor and chain conveyor in detail. So first of all, the first one is roller conveyor. So as the name suggests, it is a roller conveyor, and I told you earlier that हर कन्वेयर में एक फ्रेम होता है and that is mounted with रोलर, बेल्ट और चेन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कन्वेयर. कन्वेयर के टाइप के हिसाब से अलग अलग चीज़ों से जो फ्रेम है वो माउंटेड रहता है. सो यहाँ पे रोलर कन्वेयर है. सो द फ्रेम इज माउंटेड विथ पैरेलल रोलर्स, बट दीज रोलर्स आर नॉट पावर्ड, neither electrically nor mechanically. They use only gravity and they are inclined, and the conveyors can be straight or curved depending on the application and available floor space. Then the next type is power roller. They are same like roller conveyors, but the difference is that in the case of power roller, the frame is mounted with parallel rollers, but these rollers are powered, maybe electrically or mechanically. जो पावर रोलर होते हैं वो बिल्कुल रोलर कन्वेयर सिस्टम की तरह होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि
पावर रोलर के केस में जो फ्रेम है वो माउंटेड रहता है सेम पैरेलल रोलर से, लेकिन जो पैरेलल रोलर्स होते हैं दे आर पावर्ड, ये पावर्ड होते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिकली पावर्ड हो या फिर मैकेनिकली पावर्ड हो। द नेक्स्ट टाइप इज स्लेट बेल्ट कन्वेयर, और जिसे एप्रन कन्वेयर भी बोलते हैं। स्लेट का मतलब होता है प्लेट्स जो कि स्टील की या वुड की या फिर अदर किसी मटेरियल की बनी हो, एंड दीज प्लेट्स आर माउंटेड ऑन रोलर चेन्स टू कन्वे प्रोडक्ट। मीन्स जो कन्वेयर है उसमें एक फ्रेम है दैट इज माउंटेड विथ रोलर चेन्स, एंड दैट रोलर चेन्स आर माउंटेड विथ स्लेट्स और प्लेट्स। दी स्लेट्स आर नॉट इंटरलॉक्ड और ओवरलैपिंग। जो स्लेट्स हैं वो इंटरलॉक या ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए। सो जो स्लैट बेल्ट कन्वेयर है या जिन्हें एप्रन कन्वेयर भी बोलते हैं, they are used in heavy industry settings such as foundries and steel mills to move large heavy objects. And the next one is ball transfer conveyor, and as the name suggests that the transfer is because of ball. तो जैसा कि पता है हमें कि in the case of any conveyor there is a frame, एक फ्रेम होता है जो कि रोलर से, चेन से या अलग अलग तरह की कन्वेइंग मटेरियल से माउंटेड रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे बॉल ट्रांसफ़र कन्वेयर है, तो जो कन्वेयर है दैट इज़ माउंटेड, सॉरी, द फ्रेम ऑन द कन्वेयर इज़ माउंटेड विथ बॉल कास्टर्स। कास्टर क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पहिए होते हैं ना आपकी मेज में और कुर्सी में जिससे मूव करते हैं, टेबल पे लगे होते हैं, सेंटर टेबल पे पहिए लगे होते हैं या चेयर पे पहिए लगे होते हैं, दैट आर कॉल्ड कास्टर्स। सो ball transfer conveyor, they use a series of mounted ball casters to allow for multi-directional conveyance of the product. In the case of ball transfer conveyor, there is also multi-directional conveyance of the product, मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्शन में प्रोडक्ट कन्वे हो सकता है। And many sizes and load carrying capacities are available. बॉल ट्रांसफर कन्वेयर्स आर नॉट पावर्ड, ये पावर नहीं होते, एंड रेली ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस टू मूव द प्रोडक्ट अलॉन्ग द कन्वेयर। एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम चेयर को मूव करते हैं या फिर टेबल को मूव करते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स एक देते हैं, तो वो एक्सटर्नल फोर्स से जो कन्वेयर है वो मूव करता है और कन्वेयर पे जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वो मूव करता है। द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक कन्वेयर। तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है मैग्नेटिक है, तो इसमें जो फ्रेम है दैट इज़ माउंटेड विथ मैग्नेटिक पुलीज और मैग्नेटिक बेल्ट दैट कैरी इटसेल्फ द मैग्नेटिक मटेरियल और फेरस मटेरियल्स, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव फेरस चिप्स फ्रॉम मशीनिंग सेंटर्स। अगर आपके प्लांट में या आपके प्रोसेसिंग सिस्टम में कहीं भी कुछ फेरस मटेरियल है जो आपको रिमूव करना है, तो जो मैग्नेटिक कन्वेयर्स हैं दे आर द बेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बकेट कन्वेयर्स। तो जैसा कि नाम है इसका बकेट, तो बकेट टाइप की कोई कंस्ट्रक्शन को होती होगी जिससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दे यूज़ मल्टी साइडेड कंटेनर्स, मीन्स एक से ज़्यादा साइड है कंटेनर की तो उतना ज़्यादा उसमें मटेरियल रखा जा सकता है, एंड दीज कंटेनर्स आर अटैच्ड टू केबल्स, बैल्स और चेन्स टू कन्वे प्रोडक्ट्स और मटेरियल। और जो बकेट कन्वेयर है इसमें जो मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, द रेंज ऑफ दैट मटेरियल इज़ वास्ट बिकॉज द मटेरियल कैन बी इन लिक्विड फॉर्म और ड्राई फॉर्म, सच एज it may be sand, it may be sugar, it may be grain, it may be sludge, it may be grain. So the material can be in liquid form or dry form. The next one is chute conveyor or it is also called trough conveyor. तो chute को हिंदी में ढलान बोलते हैं और ट्रफ होता है, अगर हम जनरली बात करें तो आपने गाय भैंसों को एक चौड़े खुले बर्तन में चारा खाते हुए देखा होगा, तो चौड़ा, खुला और इंक्लाइंड होता है च्यूट और ट्रफ कन्वेयर। द फ्रेम इज माउंटेड विथ अ च्यूट और ट्रफ and it uses gravity to convey product along smooth surface from one level to another.
And the next one is overhead conveyors, and these are the most common type of conveyor. And an overhead conveyor is generally used in a production facility to move parts from one location to another. Parts means parts of any machine. जो मशीन्स होती हैं या वर्किंग एरिया होता है उसके ऊपर जो अनयूज्ड वर्टिकल स्पेस रहता है उसका ये जनरली यूज़ करते हैं। जो ओवरहेड कन्वेयर्स होते हैं वो एलिवेटर्स होते हैं या कर्व सेक्शंस होते हैं जो कि जो पार्ट्स होते हैं उसको ऑपरेटर के लेवल तक नीचे लाते हैं, एंड देन द एलिवेटर्स आर अपलिफ्टेड टू हायर एलिवेशंस, and these conveyors are used through production areas that humans can't, like through ovens and robot work cells. means जो ओवरहेड कन्वेयर्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर पार्ट्स को या मटेरियल को पास करते हैं जहाँ पे ह्यूमंस वर्क नहीं कर सकते, जैसे कि अवंस है, अवंस में टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे ह्यूमन वर्क नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे ओवरहेड कन्वेयर्स का यूज़ होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ न्यूमेटिक कन्वेयर और वैक्यूम कन्वेयर। सो एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से लग रहा है कि एक एयर प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ड्राइविंग फोर्स क्रिएट किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वर्टिकल कन्वेयर। In this type of conveyors, the products is moved vertically between levels of conveying lines, and in these type of conveyors, lift is used to uplift the material and bring it back down. जो वर्टिकल कन्वेयर्स होते हैं उसमें जो मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है उसको वर्टिकली मूव किया जाता है, अलग अलग लेवल्स, अलग अलग हाइट्स के बीच में एक लिफ्ट होती है जो कि मटेरियल को ऊपर खींचती है और फिर नीचे ले जाती है, कन्वे करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स। सो एज द नेम सजेस्ट, द नेम इज वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स। तो इन दिस टाइप ऑफ कन्वेयर्स देयर इज रोटरी और लीनियर वाइब्रेशन टू मूव मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स इस टाइप के कन्वेयर्स में रोटरी या फिर लीनियर वाइब्रेशन होता है मटेरियल को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक। द नेक्स्ट वन इज वॉकिंग बीम कन्वेयर्स। तो जैसा कि नाम है वॉकिंग बीम, यानी कि चलने के लिए जो छड़ी का हम यूज़ करते हैं, यानी कि सपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इन वॉकिंग बीम कन्वेयर्स देयर इज अ यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक सपोर्ट्स एंड मूविंग सपोर्ट्स। इनका कॉम्बिनेशन वॉकिंग बीम कन्वेयर्स में यूज़ किया जाता है। स्टैटिक सपोर्ट्स मीन्स जो एक जगह रहें और मूविंग सपोर्ट्स मीन्स जो मूव करते रहें। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हील कन्वेयर। एंड एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चलता है व्हील कन्वेयर, तो जो फ्रेम है कन्वेयर के ऊपर दैट इज माउंटेड विथ व्हील्स, बट दीज आर अनपार्ड व्हील्स and the objects are moved from one place to another place by gravity or manual power. Now we come on the next type of conveyor, that is belt conveyor. and जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं बेल्ट कन्वेयर के ऊपर कोयले को कन्वे किया जा रहा है। जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसमें दो पुली होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा राइट साइड में। जो पुली कन्वेयर बेल्ट को ड्राइव करती है दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव पुली, और जो दूसरी पुली है जो कि कन्वेयर की बेल्ट की डायरेक्शन मूवमेंट को चेंज करने के लिए यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड बैंड पुली। एंड ड्राइव पुली इज ड्रिवन बाय मोटर। द ड्राइव पुलीज आर जनरली इंस्टॉल्ड एट द डिस्चार्ज एंड, जो एक फीड एंड होता है और एक डिस्चार्ज एंड होता है। तो जो ड्राइव पुलीज हैं वो डिस्चार्ज एंड पे जनरली इंस्टॉल होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर, दे आर वन ऑफ द बेसिक टूल्स इन मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री। बेसिक टाइप ऑफ कन्वेयर है बेल्ट कन्वेयर, एंड दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क मटेरियल्स। बल्क मटेरियल मीन्स जब कोई भी मटेरियल ज़्यादा प्रोपोर्शन में कलेक्ट हो, एंड द मटेरियल कैन बी ग्रेन, सॉल्ट, कोल और सैंड, कुछ भी हो सकता है बल्क मटेरियल। एंड अगर कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करें तो इट कैन ट्रेवल फॉर माइल्स एट स्पीड अप टू 5.08 मीटर पर सेकेंड, एंड इट कैन हैंडल अप टू 4,539 मीट्रिक टन्स पर आवर। टाइप्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर, जी बेल्ट कन्वेयर के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट मीन्स जो बेल्ट
से ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज बाय फ्लैट बेल्ट, और जो सरफेस है बेल्ट का वो फ्लैट है। द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक बेल्ट, जो कि मैग्नेटिक कन्वेयर में भी आ जाता है। अ टाइप ऑफ कन्वेयर वेयर आइदर अ मैग्नेटिक स्लाइडर बेड और मैग्नेटिक पुली, या तो मैग्नेटिक स्लाइडर बेड या फिर मैग्नेटिक पुली यूज़ की जाती है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रफ्ड बेल्ट, जो कि आपका च्यूट और ट्रफ कन्वेयर में आ गया था। ट्रफ बेल्ट कन्वेयर इज दैट इन विच द बेल्ट फॉर्म्स अ ट्रफ। ट्रफ का मतलब मैंने बताया था, एक चौड़ा और खुला बर्तन ऑन द कैरिंग साइड, while running over the rollers which are either in set of 5 rows, 3 rows और 2 rows। जो बेल्ट होती है वो रोलर्स के ऊपर रन करती है, और जो रोल होते हैं वो या तो 5 रोल के सेट में होते हैं, या फिर 3 रोल के सेट में होते हैं, या फिर 2 रोल के सेट में होते हैं। एंड दे आर सुटेबल फॉर बल्क क्वांटिटी मटेरियल्स। अब क्योंकि बेल्ट कन्वेयर इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कन्वेयर, सो देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस टू दैट। द फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेशन डिफ़िकल्ट। बेल्ट कन्वेयर में डिफ़िकल्ट हो रहता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना, मटेरियल इकट्ठा होना डिफ़िकल्ट रहता है, इसमें सिर्फ सामान कन्वे होता है। इसके अलावा जो लाइट वेट मटेरियल होता है वो डस्ट की तरह, धूल की तरह उड़ जाता है, उसका लॉस हो जाता है। इसके अलावा बेल्ट कन्वेयर की कॉन्टीन्यूस और पीरियडिक मॉनिटरिंग बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा इंडस्ट्री में जो हीट होती है या एनवायरनमेंट में जो हीट होती है, दैट अफेक्ट्स द मटेरियल ऑफ बेल्ट। अब आते हैं स्क्रू कन्वेयर पे, या फिर जिसे हम ऑगर कन्वेयर भी बोलते हैं। तो स्क्रू कन्वेयर में एक यू शेप्ड ट्रफ होता है, जिसमें एक शेफ्ट होता है बीच में, और जिसके अराउंड एक हेलिक्स होता है। हेलिक्स मीन्स घुमावदार आकृति, और वो रोटेशन करती है, रिवॉल्व करती है टू पुश लूज मटेरियल फॉरवर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड डायरेक्शन। जो स्क्रू कन्वेयर होते हैं वो स्टिकी मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू कन्वेयर, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया या फिर जैसा फिगर में दिख रहा है, ये एक यू शेप्ड स्टेशनरी ट्रफ होते हैं जिसमें एक शेफ्ट होता है, जिसमें एक हेलिक्स यानी कि घुमावदार आकृति माउंटेड रहती है, जो कि रिवॉल्व करती है या फिर रोटेट करती है टू पुश लूज मटेरियल फॉरवर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड डायरेक्शन। स्क्रू कन्वेयर जनरली एंड टिपिकली इंक्लाइन पोजीशन में वर्क करते हैं, और ये मटेरियल को लगभग 80 फीट तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये लगभग किसी भी तरह के सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर से पास करा सकते हैं और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिज़ाइन की और मटेरियल की, तो इसकी डिज़ाइन की तो बहुत वाइड वैरायटी है, और अगर हम मटेरियल की बात करें तो दैट कैन बी रेंज फ्रॉम कास्ट आयरन टू स्टेनलेस स्टील। स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड साइज जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 2 इंचेस in diameter to 8 inches in diameter, and its capacity is limited to around 4.72 meter cube per minute. Applications of screw conveyor, because जो screw conveyor डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। फ्लेक्स, पाउडर, ग्रेन्स, ग्रैनुअल्स। स्क्रू कन्वेयर्स ऑफन फाइंड यूजेस एज एजिटेटर्स एंड ब्लेंडर्स। स्क्रू कन्वेयर को एजिटेटर या फिर ब्लेंडर की तरह, एजिटेटर मतलब कोई भी अगर लिक्विड किसी बीकर में है या किसी भी वेसल में है या किसी भी बर्तन में है, तो उसकी कंसंट्रेशन को पूरे में सेम करने के लिए उसको हम एजिटेट करते हैं। जैसे कि हम गिलास में पानी है, उसमें चीनी है, हमने उसे मिलाया चम्मच से, तो उससे क्या हुआ, चीनी की कंसंट्रेशन पूरे पानी में सेम हो गई, तो जो चम्मच है, जो स्पून है, वो एजिटेटर का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जो स्क्रू कन्वेयर है उसको हम एजिटेटर या ब्लेंडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे स्क्रू कन्वेयर हैं वो कंक्रीट और अदर नॉन फ्लोइंग मीडिया यानी कि सॉलिड जो कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड मटेरियल है, उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। और जो लार्जर ऑगर मीन्स स्क्रू कन्वेयर, और जो लार्जर ऑगर्स हैं या लार्जर स्क्रू कन्वेयर्स हैं दैट आर फाउंड इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। अब आता है चेन कन्वेयर। तो जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें जो फ्रेम होता है दैट इज माउंटेड विथ चेन।
तो चेन कन्वेयर्स को हम ड्रैग कन्वेयर्स भी कहते हैं। तो ड्रैग या फिर चेन कन्वेयर्स यूज मैकेनिकल डिवाइसेस अटैच टू मूविंग मेंबर्स, यूजुअली चेन्स और केबल्स टू ड्रैग प्रोडक्ट्स। जो कन्वेयर है ड्रैग कन्वेयर या फिर चेन कन्वेयर्स में जो फ्रेम है दैट इज माउंटेड विथ चेन या फिर केबल्स टू ड्रैग प्रोडक्ट्स। ड्रैग कन्वेयर्स आर यूज फॉर मूविंग बल्क मटेरियल्स। ड्रैग कन्वेयर बल्क मटेरियल को मूव करने के लिए यूज होते हैं इन बेन्स, फ्लाइट्स या फिर अदर टाइप ऑफ अटैचमेंट एंड कैन हैव मल्टीपल डिस्चार्ज और लोडिंग पॉइंट्स। बहुत सारे फीटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं इसमें और बहुत सारे डिस्चार्ज पॉइंट भी होते हैं। जो ट्यूबुलर ड्रैग कन्वेयर्स होते हैं दे आर द सिस्टम दैट इज फुल्ली इनक्लोज्ड विथ चेन्स। जो ये ट्यूबुलर ड्रैग कन्वेयर्स होते हैं इनमें ट्यूब्स होते हैं जो कि फुल्ली इनक्लोज रहते हैं विथ चेन्स टू कन्वे प्रोडक्ट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में हम मटेरियल को मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चेन कन्वेयर्स में एक चेन भी यूज़ हो सकती है और एक से ज़्यादा चेन भी यानी कि मल्टीपल चेन्स भी यूज़ हो सकते हैं। चेन कन्वेयर्स यूज एन एंडलेस चेन मीन्स जहाँ तक सिस्टम है, जहाँ तक कन्वेयर है वहाँ तक पूरे सिस्टम में चेन इनक्लोज्ड है, जिसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है टू ट्रांसमिट पावर ट्रांसमिट करना, मे बी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, एंड टू प्रोपेल मटेरियल थ्रू अ ट्रफ। जो ट्रफ है जिस पे चेन लगी है उसमें मटेरियल को प्रोपेल करना, ट्रांसपोर्ट करना। और जो मटेरियल है हो सकता है उसे चेन डायरेक्टली पुश कर रही हो या फिर चेन में कुछ अटैचमेंट लगा हो जो कि मटेरियल को पुश कर रहा हो। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो दे कैन मूव मटेरियल अप टू 90 मीटर्स, 90 मीटर तक वो मटेरियल को मूव कर सकती हैं। और अगर हम टिपिकली की बात करें, जनरल केस की बात करें तो 30 मीटर तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं चेन कन्वेयर्स। एप्लीकेशंस ऑफ चेन कन्वेयर। चेन कन्वेयर्स जो हैं वो प्राइमरली हैवी यूनिट लोड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो ग्रिड बॉक्सेस भारी होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल कंटेनर्स भारी होते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जनरली चेन कन्वेयर्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिंगल चेन भी हो सकता है और डबल चेन भी हो सकता है चेन कन्वेयर सिस्टम में। जो लोड है यानी कि जो मटेरियल है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसको चेन पे रखा जाता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है जिससे कि लोड जो है वो आगे फॉरवर्ड पुल होता है। चेन कन्वेयर्स को इंस्टॉल करना बहुत इजी है और उसमें बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स चेन कन्वेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन देयर प्रोडक्शन लाइंस। और अगर हम मोस्ट कॉमन यूज़ की बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैं जैसे कि कार इंडस्ट्री, दे कॉमनली यूज़ चेन कन्वेयर सिस्टम्स टू कन्वे कार पार्ट्स थ्रू पेंट प्लांट्स। मीन्स कार पार्ट्स को पेंट करने के लिए, उनको पेंट प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए चेन कन्वेयर का यूज़ करते हैं। एंड चेन कन्वेयर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द पेंटिंग एंड कोटिंग इंडस्ट्री बिकॉज दिस अलाउज फॉर ईजियर पेंट एप्लीकेशन। थैंक यू एंड गुड लक। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आता है, मेरे समझाने में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मिक्सर्स के ऊपर होगी। और आपके जो भी सजेशंस हो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।